Roll number 1, A batch roll number 1, read question. Roll number 1, A batch, read question. Ravi, read question. Ravi Pawar, read question. कोई भी नहीं? See, you want to differentiate this with respect to this. We want to differentiate this with respect to this. तुम लोग बोलेंगे जो करेंगे फैक्ट करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही नहीं आता, सर ये कहां से आएगा? तो इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करना है, इतना सिंपल नहीं। तो क्या करना है, देखो, लेट tan इनवर्स ऑफ दिस, इनवर्स फंक्शन है तो सिंपल है, एंड v इज दिस, बराबर है। पहला क्या ने u, दूसरा जुम क्या v, मतलब u को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू v, दैट इज टू फाइंड du by dv। सो बाय पैरामीट्रिक फंक्शन du by dx निकालो और dv by dx निकालो, दोनों का रेशियो लो। चलो, कौन बता रहा है? चलो बताओ, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तुम लोग बोले इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करना है, सिंपल बात नहीं। पहला अज्यूम किया u, दूसरा अज्यूम किया v, तुमको निकालना है du by dv। कौन बता रहा है? पार्थ बता, पार्थ सान लोग है। सांग। हा सर, मग सिन्स यू इक्वल्स टू टॅन इनवर्स ऑफ ते द्यायचं. काय? हा सर, यू मध्ये एक्स इक्वल्स टू साइन थिटा टाकायचं. ओके, put x as sin theta. हा मग Since u equals to tan inverse of x upon under root 1 minus x square, put x as Sin sin theta. theta. Therefore, u equal to tan inverse of साइन थिटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेअर थिटा. बराबर है। मग साइन कॉस थिटा पण कॉस थिटा टॅन थिटा. I will u equal to tan inverse. This is sin theta upon this is टॅन cos. इनवर्स क्योंकि 1 minus sin square is cos square. Root of cos square is cos. Sin upon cos tan. So what is u? Tan inverse of tan theta. That is what theta. Now differentiating with respect to theta, du by dt कितना आएगा? 1. बराबर है? Yes. पुढे. Next. मग सिन्स v इक्वल्स टू सेक इनवर्स ते लिहायचं. लिहिलं. पुढे. बोल ना पुढे, ऐकतोय ना मी. हा सर, एक Carry on, carry on. V equal to, since V equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1. हा सर, ते एक्सच्या जागी कॉस थिटा टाकायचं. Put x as cos theta, because that will be 2 cos square theta.
minus 1. So sec inverse 2 cos theta minus 1 is cos 2 theta. 1 upon cos theta is sec 2 theta. कितना आएगा 2 theta. Differentiating with respect to theta, dv by d theta कितना आएगा 2 हो गया. Therefore du by dv equal to du by dx upon dv by dx. वैल्यू डाल दो. du by dx कितना, sorry, du by d theta not dx. du by d theta is 1, du by d theta is 2. Very simple. क्या समझ में आया? We are not so great to differentiate this with respect to this. So पहला you assume किया, दूसरा we assume किया. Clearly I setting table number 5 most important for CET, that is for integration derivative सभी के लिए important है, CET के लिए भी important है. So du by dv निकालना है. So u है, u is function of x, you cannot differentiate directly. Put x as sine. So sine upon root 1 minus sine square cos square, sine upon cos tan theta है. So difference with respect to theta, du by theta है 1. What is v this one? Put x as cos 1 upon 2 cos square theta minus 1. That is cos theta. 1 upon cos sec 2 theta. Differentiating with respect to theta, dv by dt कितना है 2. Take ratio. बराबर है. So simple. Next. Second, differentiate tan inverse root 1 plus x square minus 1 upon x with respect to cos inverse under root 1 plus डरना मना है. No doubt तुम लोग इसको कर रहे हैं. So solution. लेट, अभी मेरे पास इतना जगह भी नहीं है और टाइम भी नहीं है. तुम you should write u इतना, v इतना. So what to find? To find du by dv. What to find? Du by dv. Since what is u? Tan inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x. बताओ, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है. कौन बता रहा है? Raise your hand. Solve this. Find out du by dx or your wish. क्या निकालना है तो ऐसा बताओ fast. What is u? Tan inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x. Fast. अरे एक भी लड़का नहीं, किसको मालूम है हाउ टू सॉल्व? एकदम सिंपल है. u equal to tan inverse of root 1 plus x square minus 1 upon x. अरे बताओ what, how to solve, how to get du by dx or du by dx, जो भी होगा. नहीं, अरे बताओ बाबा बताओ. u is tan inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x. How to solve, how to take its derivative? क्या करेंगे तुम लोग? एकदम ओरली है. सिंपल, सिंपल मतलब सिंपल. कोई भी नहीं. यशराज, यशराज, समर्थ,
सांग. तर जर x ला आपण u च्या ह्याच्यामध्ये x ला sec थिटा टाकलं तर एक्स ला काय टाकणार? sec थिटा मग ते पूर्ण डिफरन्शिएट केल्यावर आन्सर येईल tan इनवर्स ऑफ sin थिटा कसं काय आलं सांग बरं मित्र. 1 मायनस sec स्क्वेअर येईल tan स्क्वेअर one minus- थिटा कुठे 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आलं? नाही 1 प्लस sec स्क्वेअर नाही एक हा? मिनिट नाही चुकलं माझं कॅल्क्युलेशन. सांग काय करणार तर. That's why I'm telling you table number 5 standard substitution. ते नाही येणार तर मग तुम्हाला नाही येणार बाबा हे. एकदम चिल्लर आहे चिल्लर, नथिंग एल्स. tan theta 1 plus tan square theta सांग मला लवकर काय करणार तर. put x square is equal to tan theta. tan theta x स्क्वेअर ने पागल x. x is equal to tan theta. मी केव्हाच ओरडतोय की सांगा तुम्ही मला विचारायला सांगायला डायरेक्ट सांगायचं चुकलं तर चुकलं. बोल. हा मग u is equal to tan inverse of 1 plus tan square theta 1 plus tan square theta minus 1 upon tan tan theta. theta. बरोबर आहे. पुढे जर u is equal to tan inverse of थांब. sec square theta minus 1. ओके हाँ देखो नो डाउट ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. पता है कि पुट एक्स as tan theta. पुट एक्स as tan theta. यस tan theta. रूट 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 1 अपॉन tan. बरोबर. हाँ tan इनवर्स sec square theta minus 1 upon tan theta. कसं काय? 1 plus tan square theta is sec square theta. अरे त्याचं रूट आहे ना मग मित्रा. हाँ मग sec theta minus 1 upon असं tan बोल ना theta. फालतू से कितना डाउट नहीं मित्रा. यस हो गया. 1 plus tan square is sec square. रूट ऑफ sec square is sec माइनस 1 अपॉन tan. चलो सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो. त्याच्या पुढे काय करणार? sec theta minus 1. sec theta is 1 upon या स्क्रीनशॉट. minus 1 minus cos theta. यशराज तू बोलू नको कोणाशी इथं स्क्रीनशॉट घ्यायला प्रॉब्लेम येतोय. हा हो गया. या स्क्रीनशॉट. बोल पुढे. Divided by tan theta. एक मिनिट सर. Divided by sin upon cos. So u equal to मग त्याला आत सिम्प्लिफाय करायचं. sec ला आपण लिहू लवकर शकतो बाबा हे चिल्लर आहे रे. 1 upon cos 1 upon cos minus 1 upon tan हा tan theta tan theta. मग त्याला कमी सिम्प्लिफाय करू का मित्रा? sin upon cos. अरे मी तुला 4 वेळा सांगतो हे चिल्लर आहे. याला काही इम्पॉर्टन्सच नाहीये. अशा ते सांगायला परवडत नाही ते. हा मग सिम्प्लिफाय केल्यावर ते येईल 1 minus cos upon sin theta. x as tan theta स्टँडर्ड सब्स्टिट्यूशन आहे. 1 plus tan square sec square root of sec square is sec. या सगळ्या मनातल्या स्टेप्स आहेत. हा पुढे बोल. 1 minus cos theta upon sin theta. 1 minus cos theta upon sin theta. Take LCM. Yes. पुढे मग आता डिफरन्शिएट कर नाही एक मिनिट सर स्क्रीन दिसत नाही मला. 1 हा minus बोलायचं पुढे. मग 1 upon sin cosec minus cot theta. सोड रे बाबा सोड. जाऊ दे. लोअर युअर हँड. तू काहीतरी प्रॉब्लेम क्रिएट करतो. सिंपल आहे. कोण मजा आहे? काय केलं तू? होमवर्क करतो की मजा करतोय मग? सांग पार. हा सर मग 1 minus cos theta लिहायचं 2 sin square theta by 2 2 sin square theta by 2 upon 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 2 sin theta by 2 cos theta by 2. काय यशराज काय प्रॉब्लेम लिहिला? By using half angle formula. 1 minus cos is sin is 2 sin theta by 2 cos theta by 2. बरोबर आहे. पुढे
मग साइन एक साइन कॅन्सल टू कॅन्सल टॅन थिटा बाय टू tan theta राहिला. by Twice to हा sin theta. मग यू इक्वल्स टू थिटा बाय टू. theta by 2 पुढे मग डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थिटा. differentiating with respect to theta du by d theta is 1 by 2 बरोबर आहे. हा, पुढे मग v इक्वल्स टू कॉस इनवर्स v equal to लिहायचं. काय लिहायचं कॉस cos इनवर्स लिहू पूर्ण हा. लिहिलं. मग x इक्वल्स टू टॅन थिटा टाकायचं. Okay, put excess tan theta. So v equal to cos inverse. Both 1 अंडर रूट under 1 root प्लस 1 1 प्लस अंडर plus रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan टॅन स्क्वेअर square theta upon 2 under root 1 plus tan square theta. बरोबर आहे. मग पुढे v इक्वल्स टू कॉस इनवर्स cos 1 inverse प्लस under 1 root 1 प्लस सेक plus थिटा sec प्लस theta सेक थिटा upon 2 sec theta. 2 सेक. बरोबर आहे. So simple. बनाने की जरूरत है. Tan square 1 plus tan square sec square root of sec square sec. Same here. पुढे मग सेक थिटाला 1 अपॉन कॉस लिहायचं. 1 plus 1 upon cos 2 upon cos. मग So cos एलसीएम inverse. घ्यायचं. हा एलसीएम घ्यायचा न्यूमरेटर हा, मध्ये आणि किती? कॉस Under कॉस root. कॅन्सल. 1 plus अंडर रूट cos upon 2. Division घेतला. Cos plus 1 upon cos 2 upon cos. Cos cos cancel. हा पुढे cos मग inverse. आता 1 हा, प्लस कॉसला 2 कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2. that is 2 cos square theta by 2 upon 2. So cos inverse cos theta by 2, that is theta by 2. Differentiating with respect to theta. So dv by theta आएगा 1 by 2. काय यशराज सोपं आहे का Yes. यशराज? Yes, sir. काय तू एवढं तुला एवढं माहित नाही हे 1 हाफ अँगल फार माहित नाही. इट इज वंडरफुल नाव. ठीक है. पुट एक्स टैन तुम्हारा सामने डाला है. sec square root of sec square is sec. Same here. Convert sec is 1 upon cos 1 upon cos. ये LCM आया. 1 plus. इसका हाफ एंगल इस्तेमाल किया 2 to cancel एकदम easy. So du by theta half. So du by dv is du by d theta upon dv by theta. 1 by 2 upon 1 by 2. कितना होगा 1. टेबल नंबर 5 अभी बना रहा हो. ऐसा मत समझो कि सर्किट आप ही दिमाग में रहेगा. आज के दिन ही टेबल नंबर 5 लर्न करना है. तुम्हारे नोटबुक पे 3 बार लिखना है. आई विल चेक. टेबल नंबर 5 लर्न करना है. टेबल नंबर 5 लर्न करना है 3 बार एक बुक में नोटबुक में लिखना है. लर्न करके आई विल चेक. ऐसा मत समझो कि मेरा ध्यान नहीं रहेगा. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. दैट इज टाइप नंबर 5. टाइप नंबर 5. देखो पहला टाइप था चेन रूल. पहला टाइप था चेन रूल को 2-4 लेक्चर चले. टाइप नंबर 2 था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. टाइप नंबर 3 था इनवर्स. टाइप नंबर 4 था पैरामीट्रिक. और टाइप नंबर 5 है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. व्हाट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स? देखो if y equal to f of x is function of x, then dy by dx is f dash of x. तो डाउट ही नहीं है. dy by dx is f dash of x. इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. या डॉट 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 क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है.
dy by dx is f dash x called as first order derivative. बराबर है. अभी मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूँ. अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. अभी देखो मजे की बात. dy by dx का डिफरेंशिएशन d2y by dx square. d2y by dx is derivative of dy by dx. What is the f double dash of x? ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ये क्या होगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. What is d2y by dx square? Derivative of dy by dx. क्या बोला समझ में? dy by dx derivative d2y by dx square. Again differentiating with respect to x. d cube y by dx cube equal to f triple dash of. This is called as third order derivative. बराबर है. बढ़िया टॉपिक है ये भी है. दिस ऑल्सो इंटरेस्टिंग टॉपिक. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. y is f of x. Y is f of x. And dy by dx is f dash of. dy by dx is f dash of x. d2y by dx square is f double dash of x. On a second order derivative. d2y by dx square is d cube y by dx cube is f triple dash of x. Third order derivative. होगा. It's so simple. यशराज तू कोणतरी बोलतोय. माईक बंद कर. सर बंदच आहे माईक माझा. नाही तुझं इथं नाव येतं समोर. मी इथं लॅपटॉप मला ठेवलाय. बरोबर आहे. मी लॅपटॉप वर पण बघतोय. पण माझा रेज हँड ब्लू कलर मध्ये नाहीये आता. रेज हँड नाही केलं. ओके फाइन ठीक है. कळलं का सर? मेथड कळली का यशराज? हो. ओके चलो स्क्रीनशॉट लो. फोटो निकालो. फोटो निकाला. डेली ऑटोमेटिक तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है. देखो इंटरेस्टिंग बात अभी है. फॉर एग्जाम्पल लेट f of x equal to x 2x cube minus 2x square plus 5. लिख दिया. क्या लिखा? f of x is 2x cube minus 2x square plus 5. No doubt this is polynomial of degree 3. अभी मेरे पास इतना हुआ कि तुमको पूछने को क्या है तो. This is polynomial of degree 3. अभी let us differentiate. क्या होगा देखो. Differentiating with respect to x. f dash of x 6x square minus 2. है कि नहीं? देखो इसका डेरिवेटिव 6x स्क्वायर माइनस का डेरिवेटिव कितना आएगा? 4x. 5 का डेरिवेटिव 0. अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. इधर आएगा f डबल डैश ऑफ x. मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x and derivative of f dash of x. 12x minus 4. Again differentiating with respect to x. f triple dash of x कितना? 12. Again differentiating. मैं पागल ने एग्जाम्पल लेने जैसा. कितना? 0. समझ में आया तो देखो. f of x is polynomial of degree 3. polynomial degree 3. पहला डेरिवेटिव कितना है? हमारे सामने लिया. दूसरा डेरिवेटिव लिया. तीसरा लिया. फोर्थ 0. अभी सब 0. समझ में आया?
नहीं समझ में आया? देखो, जब पॉलिनोमियल थर्ड ऑर्डर होगी, पॉलिनोमियल ऑर्डर कितने हैं? थर्ड, तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव सब जीरो। थर्ड इसकी पावर 3 है तो थर्ड तक कांस्टेंट आएगा, उसके बाद में सब जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, तुमको सीईटी में लगने वाला है, जेईई में लगने वाला है। नोट, y1 मतलब dy बाई dx, y2 मतलब d2i बाई dx है। क्या समझ में? व्हाट इज y1? dy बाई dx। व्हाट इज y2? दिखाई दे रहा है, d2i बाई dx। Also, d2i by dx square is not equal to dy by dx the whole square। तुम लोग कितने होशियार है मुझे मालूम है, करेक्ट है, तुम्हारी इसमें लोगों में है। सर कॉमन ले लिया स्क्वायर, हंस रहे तुम लोग, इसमें मुझे मालूम है साइली सूर्यवंशी करके लड़की है, वो हंसती होगी भी। d2i by dx square not equal to dy by dx the whole square। साइली असली कितना है? यस, ये दोनों इक्वल नहीं है। Also, this is point number 1, this point number 2, point number 3. dy by dx, as we have learned, 1 by dy. What is dy by dx? 1 upon dx by dy. But d2i by dx square not equal to 1 upon d2x by dy। ये तो पक्का ही बराबर है। This most important, dy by dx 1 upon dx by dy, but dy by dx square not equal to 1 upon d2x by dy square। ये बहुत important part है, this is most important part to remember। हो गया, समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो पहला, इफ x is 80 स्क्वायर, तो पहले सिंपल, फाइंड d2i by dx स्क्वायर। तुम लोग यहाँ पे 100% गड़बड़ करेंगे, कैसा देखो, इफ फर्स्ट x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, लोग यहाँ पे पक्का गड़बड़ करेंगे, y इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, बराबर है। और चलो पहले सिंपल लेंगे बाबा इससे भी। व्हाट इज x, व्हाट इज y? y इज x स्क्वायर e रेज़ टू x, नो डाउट, प्रोडक्ट है यूवी रूल, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, so dy by dx x square as it is, d by dx of e raised to x plus e raised to as it is d by dx of x square। Therefore, dy by dx x square as it is e raised to x plus e raised to as it is rate of x square is 2x। तुम लोग dy by इक्वल टू e raised to x कॉमन निकाल सकते हैं, नो डाउट। इसमें कुछ भी एकदम बंकसगिरी मतलब बंकसगिरी, करेक्ट है। नोट दैट ये टाइम पास नहीं है। अभी भी मैंने आई थिंक 4 बजे तुमको होमवर्क वाली पीडीएफ पूछा, आंसर सॉल्यूशन, और देखो सुबह भेजा था तुमको, सॉल्व किया नहीं किया उधार है, फिर भी पीडीएफ भेजा है, नहीं समझ में आया मुझे पूछो, तुमको सिर्फ अच्छी तरह लर्न करके नोटबुक पे लिखना है। होगा यूवी रूल क्या, नो डाउट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन यूवी रूल, ये यू और वी बराबर है। पहला एज इट इज डी बाई dx ऑफ दूसरा प्लस दूसरा एज इट इज डी बाई dx ऑफ
So d2y by dt is 2x as it is. Derivative of x square is 2x plus derivative of 2x is 2 plus x square plus 2x as it is, and derivative of e raised to x is e raised to x. एकदम बकवास है. So d2y by dx square is e raised to x common. E raised to x common. 2x plus 2 plus x square plus. समझ में? Say again, what is y? X square e raised to x. Differentiating with respect to x. dy by dx square is पहला डेरिवेटिव दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा डेरिवेटिव पहले का डेरिवेटिव. d by dx of e raised to x, e raised to x. d by dx of x square क्या कॉमन आएगा? e raised to x, x square plus 2. Again you will rule differentiating with respect to x. इसका डेरिवेटिव है. You rule पहला डेरिवेटिव दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा डेरिवेटिव पहले का डेरिवेटिव. यहाँ it is d by dx of x square 2x, d by dx of 2x 2 plus here it is d by dx of फाइव. दूसरा x is a theta minus sin theta y a in bracket 1 minus cos theta. गड़बड़ नहीं करने का. अब ये भी क्या है? पैरामीट्रिक फंक्शन. x is function of theta, y is function of theta. So differentiate x with respect to theta and y with respect to theta. See x a in bracket theta minus sin. Differentiating with respect to theta. Therefore, dx by dθ is what? A in bracket d by dt of theta is 1 minus sin z2 with respect to theta cos. What is y? A in bracket 1 minus cos theta. Differentiating with respect to theta. dy by dθ, a constant, that is 0, minus cos 32 minus sin. कितना आया? a sin theta. Therefore, dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta. What is dy by d theta? A sin theta upon this what? A in bracket 1. ये बताने की जरूरत नहीं. 1 माइनस cos थीटा कितना? ये नहीं आया तो फिर छोड़ दो. Say again, what is x? In bracket theta minus sin theta. Differentiating with respect to theta. dx by d theta equal to a constant. Theta का डेरिवेटिव is 1 minus sin the derivative. What is y? A in bracket 1 minus cos. Differentiating with respect to theta. dy by d theta equal to a 1 का डेरिवेटिव 0 minus cos 2 minus sin. Take ratio, yes. Therefore, dy by dx a cancel. ये बताने की जरूरत नहीं. नीचे ऊपर आएगा 2 sin cos, नीचे आएगा 2 sin square. बग 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 करने की जरूरत नहीं. cos थीटा by 2 वही नहीं. a cancel. बाप एंगल पर 2 sin square, 2 sin theta by 2 cos theta by 2 और नीचे 2 sin square. Again 2 cancel. एक sin cancel. ऊपर बचेगा cos, नीचे बचेगा sin. टाइम नहीं करेक्ट है. 1 बकवास करेगा वही देखो. a cancel. 2 sin theta by 2 cos theta by 2 upon 2 sin square theta by 2. 2 cancel, एक sin cancel. Cot theta. बराबर है. Now next step is important. We want dy by x square differentiating with respect to x.
ये की स्टेप है, बग बग क्या बोला मैंने, बग बग तुम्हारे सामने आता हूँ, बग 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 करने का नहीं। नेक्स्ट स्टेप इज इम्पोर्टेंट स्टेप है, स्टाइल है, बाबूराव का स्टाइल है। what dy by dx cot theta by 2 differentiating with respect to x, therefore d2i by dx cot का d2 minus cosec square theta by 2 d by dx। होशियारी नहीं करने का, you are differentiating with respect to x, so d2i by dx square equal to cot का d2 minus cosec square into d by dx of किसका, theta by। होशियारी नहीं करने का, यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग है, दिखा दे रहा है, थीटा है, फिर कितना है, एक्स, वेरिएबल्स आर डिफरेंट, तो बाय चेन रूल कितना है, डी बाय एक्स ऑफ थीटा बाय, बराबर है। यहाँ तक तो कॉमन ही है, यहाँ तक कॉमन ही है। पैरामीट्रिक फंक्शन में कल के दिन क्या भी होगा, और आज होमवर्क में भी क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट क्या आगे इंपॉर्टेंट है, कॉट का d2 माइनस कॉस स्क्वायर। तुम लोग महान है, क्या महान है, एक छोड़ देते, ये छोड़ देते तुम लोग, 100%, 101% छोड़ देते। आगे एक बार फोटो निकालो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ले लिया, यस। क्या आएगा, d2i by dx square minus cosec square theta by 2 1 by 2 कॉमन d theta by dx, बराबर है। देखो 1 by 2 कॉमन, d theta by dx लिखा, फाइन, इक्वल टू माइनस cosec square theta by 2 1 by 2 पहले लिखा, what is d theta by dx, 1 upon d theta by, बराबर है, d theta by dx nothing but 1 upon dx by d theta minus 1 by 2 cosec square 1 upon what is value of dx by d theta, कितना कितना इतना, in bracket 1 minus cos theta, fine, minus 1 by 2a cosec square theta by 2 into cosec square theta by 2, कैसा क्या देखो, ये माइनस 1 by 2a cosec square 1 upon 1 minus cos 2 sin square, करेक्ट है। चलो लिखते तो बोले वहां पे 1 upon 2 sin square theta by 2 minus 4a cosec raised to 4 theta by 2, सिंपल है। देखो ये 2 और ये 2 है, 4 हुआ 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कोसेक रेज टू ओ, रिपीट कर रहा हूँ, अगेन तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, dy बाय dx ले लिया, उसके बाद में डी थीटा बाय d2y बाय dx को लेना है। सेम सम तुमको सीटी में आएगा, जे में वैसा आएगा, d2y बाय dx को लेना है, ऐसा ऑप्शन आएगा, बस इतना ही कि फर्स्ट स्टेप में करना है। तुमको कौन बताएगा 1 माइनस कॉस कितना है, differential with respect to x, derivative of what is minus cosec square d by dx of theta by 2, 1 by 2 बाहर निकाला उधर, d theta by dx, तुम्हारे पास d theta by dx नहीं है, क्या है, dx by d theta, तो इसे कर लिया, हो गया, dx by d theta का वैल्यू डाल दिया, यस, हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला, एक थीटा और एक थीटा बाय 2 ऐसा नहीं चलेगा, हाफ एंगल फार्मूला 2 sin थीटा बाय 2 1 अपॉन sin स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कोसेक रेज़ टू 4,
बराबर है, एकदम सिंपल है, शुड एबल टू सॉल्व हो गया। अभी बढ़िया सम, इंटरेस्टिंग सम अगेन, हायर ऑर्डर के सम इंटरेस्टिंग ही है। शो दैट d2y by dx square into xy प्लस, ये सभी सम तुमको शॉर्टकट में आएगा सीटी के लिए। शो दैट xy d2y by dx square प्लस इक्वल टू 0। देखो क्या करेंगे, तो अभी मेथड क्या बता रही कि पहले d2y by dx square निकालो। पहले क्या निकालो, d2y by dx square। वो कब आएगा, जब dy by dx आएगा। d2y by dx square डायरेक्टली नॉट पॉसिबल, तो क्या करेंगे, dy by dx एज पर अपडेट कैलकुलेट किया था फर्स्ट था, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, इधर आएगा dx by dt 2at, बताने की जरूरत नहीं, dy by dt is 2a constant, derivative of 2 this is 1, इधर a constant, derivative of this is 2t, 2at आया। Therefore dy by dx is dy by dt upon dx by dt। dy by dt कितना, 2a, dx by dt कितना, 2at, 1 upon, so dy by dt कितना आएगा, 1 upon, बराबर है, यस। नाउ तुमको चाहिए d2y by dx square, करेक्ट है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y by dx square 1 upon t का d2 माइनस 1 upon t square dt by dx। 1 upon t का d2 कितना है, माइनस 1 upon t square, सॉरी dx by dt, dx by dt। वेरिएबल क्या तुम्हारे पास, यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो यहाँ पे 1 2, 1 अपॉन टी का d2 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, वेरिएबल कितना दिया है t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाय dx। तुम्हारे पास dt बाय dx नहीं है, सो क्या क्या 1 अपॉन dx बाय dt, क्या 1 अपॉन dx बाय dt कितना, dx बाय dt किधर गया है 280 होगा dt बाय dt स्क्वायर। और क्या बोल रहा है कि DC 0 निकालने का है, तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं अभी इसके लिए, ठीक है। कंसीडर एलएचएस, सॉल्व करो गेट 0, तो क्या बोलोगे समझ में आया, कंसीडर एलएचएस, वैल्यू डाल दो, सॉल्व करो, सॉल्व कितना आएगा 0, मिल गया। इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, d2y बाय dx स्क्वायर कितना, माइनस 1 अपॉन 280 क्यूब, माइनस 1 अपॉन 280 क्यूब। Now consider LHS, xy d2y by dx square plus a, फाइन। अभी d2y by t में है, तो x भी कितना t में डालेंगे, व्हाट इज x, at स्क्वायर y 2at d2y by dx स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t क्यूब प्लस a। क्या कर दिया, सब वैल्यू डाल दिया, x की वैल्यू डाल दिया, y का वैल्यू डाल दिया, dy पर का वैल्यू डाल दिया, प्लस इक्वल टू ये 2a स्क्वायर टी क्यूब, 2a स्क्वायर टी क्यूब, 2a स्क्वायर टी क्यूब माइनस 1 अपॉन टी क्यूब प्लस 2 कैंसल, टी क्यूब कैंसल, एक ये कैंसल, ए माइनस से बचेगा, प्लस कितना आएगा
Therefore, xy d2y by dx square plus is 0. समझ में आया? और देखो तुम्हारे पास क्या दिखाने का xy d2y by dx square. Since d2y by dx square is minus 1 upon 20 cube. Fine. 280 cube d2y by dx square plus 1 equal to 0. ये अच्छा मेथड है. rather than this इसमें दम नहीं है. ये अच्छा लॉजिक बता रहा हूँ. इधर गया 280 cube माइनस इधर प्लस 1. तुमको दिखाने का है प्लस है इक्वल टू 0 मतलब यही चाहिए. ये आपने घर का काम है क्या? ये लिख दिया मल्टीप्लाई बाय. So 2a square t cube d2y by dx square plus a equal to 0. अभी मन ही मन में देखो ये मिल गया ये मिल गया ये मिल गया ये मिल गया. मतलब तुमको एक्स वाई चाहिए ना. फिर क्या कितना चाहिए एक्स वाई. एक्स कितना 80 स्क्वायर वाई कितना 280. तो देखो मैंने इसको स्प्लिट अप किया 80 स्क्वायर और 280 बराबर है. ये देखो कितना हुआ 2a into a 2a square 2a into a 2a square t square into tt cube. Yes. Okay, this is x. This is x. This is y into y d2y by d square plus a equal to 0. आंसर आया बढ़िया है. दिस टेक्निकली करेक्ट मेथड. ये तो सिंपल ही है. बट हमेशा ऐसा काम नहीं चलेगा. हमेशा ऐसा काम नहीं चलेगा. ऐसे करना पड़ेगा. इसलिए बता कैसे का हमेशा नेक्स्ट समय समझ में आएगा. टॉपिक बढ़िया ही है. ब्रैक में तुम लोगों ने घसीटा नहीं तो बढ़िया ही है. आगे पहले x है dx by dt निकाला पर मेथड से. y है dy by dt निकाला. dy by dt दोनों का रेशियो ले लिया 1 अपॉन t आया. मुझे अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. क्या आया d2y by dx square is 1 अपॉन t का d2 minus 1 अपॉन t square into dt by dx what dt by dx 1 upon dx by एक बड़ी कितना है कितना का ये तो माइनस 1 अपॉन 280 क्यूब. मैंने एलएचएस ले लिया. x लिखा y लिखा d2y by dx लिखा प्लस से ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. कट कुट किया इतना मिला. दूसरा कितना इधर गया प्लस 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय. क्यों मल्टीप्लाई बाय? क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं और ठीक लिख दिया मल्टीप्लाई बाय होगा. इसका जब लिखा 80 स्क्वायर 280 दिस गिव्स x दिस गिव्स y. फोटो निकालो. तब तक मैं पानी पी के आता. निकल दिया फोटो. आगे नेक्स्ट वन बढ़िया समझ लेंगे. इफ y इक्वल टू sin of m cos inverse of x show that 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx
plus m square y equal to 0. Question पढ़ा. What is y? Sine of m cos inverse of x show that this equal to 0. चलो at least x step की बताओ. Since what is y? Sine of m cos inverse of x. बताओ. At least one step. Bas, I don't want computation from your side, but at least one step. बात है मेरा काम है बताने का. What is given y? Sine of m cos inverse of x. We want to show like this. पहला step बताओ बस. Then I will tell you next step. क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन बता रहा है कि dy by dx निकालो, d2y by dx स्क्वायर निकालो, LHS लो उसको सॉल्व करो 0 मिलेगा. बट वैसा करने का नहीं है. What to do? I will tell you. चलो स्टेप बताओ पहले एक भी. At least one step. Y is given as sine of m cos inverse of x. कोई तो भी बताओ. कितने लोगों में से कोई तो भी बताएगा. कौन बता रहा है? आदित्य माने. कौन बता रहा है? आकांक्षा जमादार है कि नहीं सांग? अरे एटलीस्ट वन स्टेप. सानिका इंगळे. Y is given as sine of m cos inverse of x. कोई भी नहीं. वाह. सांग पार्थ. That is one step. अरे सो गए क्या सब? m is cos of m cos inverse of x. पहला स्टेप बताओ रवि. हाँ बोला कौन बोलता है? ये बड़ा नाम किसने डाला है? 1f(x) 8y स्क्वायर रूट किसने डाला है? वो कौन है बताओ. See, what is y? Sine of m cos inverse of x. Differentiating with respect to x. So dy by dx sin 32 cos into by chain rule d by dx of. इतना सिंपल तुमको नहीं आ रहा है फर्स्ट स्टेप. What is dy by dx? Derivative of sine is cos of m sin inverse of cos inverse of x into d by dx of m cos inverse of x. So dy by dx. हा कोण आहे 180x वाला? मी बघतो कॉम्प्युटर मध्ये बघेल, मला सगळं कळतंय. वो जो भी 1fx वाला है ना उसको मैं देखूंगा, ध्यान में रखो. वो मुझे कंप्यूटर पे सब दिख रहा है किस का नाम है. तो sin का डेरिवेटिव cos, डेरिवेटिव ऑफ sin इज cos into d by dx of m cos inverse of x बराबर है cos of m cos inverse of x. यहाँ पे क्या कांस्टेंट m.
m constant, and the root of cosinus of x is 1 upon under root 1 minus x. m as it is, d by dx of cosinus of x minus 1 upon root of this. बराबर है? Yes. तुमको d2y by dx मिल जाए, बराबर है? इसको डिफरेंशिएट करेंगे? Yes. So very important note. यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ, important note है क्या? In this type, shift denominator to right hand side or left hand side is most important note. जो भी डिनोमिनेटर होगा ना शिफ्ट किया, चलो कितना होगा? 1 minus x square dy by x minus like this. अच्छी तरह लिखा, रूट इधर का है और प्लस एम इधर माइनस या। मैंने पहले बताया कि ऐसे जो बड़े बड़े रिजल्ट है ना तो डायरेक्ट लिया आएंगे, नो नीड टू कंसीडर होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 upon 2 under root 1 minus x square into d by dx of x. कितना माइनस, होशियार नहीं करने का, u as it is, इसका डेरिवेटिव d2y by dx square प्लस dy by dx it is रूट का डेरिवेटिव कितना? 1 upon 2 root into d by dx of 1 minus x square, कितना माइनस, बराबर है? इक्वल टू माइनस m कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव कितना? माइनस साइन m cos इनवर्स ऑफ x into d by dx of m. डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। माइनस m as it is, what is root of cos? माइनस साइन into d by dx of m cos, बराबर कितना होगा? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे y2, दिस इज y2, दिस इज y2 प्लस दिस इज y1, 2 कैंसल, 2 कैंसल, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस m साइन ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x d by dx of this is minus m as it is cos sinus का डेरिवेटिव minus 1 upon under root, yes आ गया yes। मैंने पहले बताया ये अपॉन अंडर रूट है, मल्टीप्लाई देखो ये अपॉन है, ये अपॉन है, मल्टीप्लाई के तो कैंसिल हो जाएगा, हर एक समय इसे करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो देखो ये रूट और रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये रूट और रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा, y2 माइनस एक्स y1 अपॉन और रूट कैंसल, अपॉन रूट कैंसल इक्वल टू ये माइनस m इंटू m माइनस m स्क्वायर साइन ऑफ m, ये और कैंसल हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू माइनस m स्क्वायर। ऑब्जर्व करो दिस इज y, ये क्या है रे? y फ्रॉम 1 okay, therefore 1 minus x square d2y by dx square minus x dy plus m square y equal to 0. Standard result 5. See again, in such type of problems ये करना है, in this type shift denominator to LHS or RHS, do not differentiate again directly, पहले denominator shift करो and then you differentiate,
डिफिकल्ट तो 1% भी नहीं, सो सिंपल. सी dy by dx इक्वल टू साइन का डी टू एक्सप्लेन सुनो. साइन का डी टू डी by dx ऑफ दिस as it is. m as it is. dy by dx of cos inverse is minus 1 upon root. Each one root रहेगा root dy like this minus m into cos of this. Again difference with respect to x. u विरुद्ध पहला as it is दूसरे का डेरिवेटिव. पहला as it is दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा as it is पहले का डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव रूट का डेरिवेटिव 1 upon 2 root into d by x upon minus 2x. Fine. all तो स्टेप आउट क्या है पे माइनस m as it is cos का डेरिवेटिव माइनस sin into d by dx of m cos. एकदम सिंपल करो. ये मैंने y2 लिखा, ये y1 लिखा, 2 कैंसिल किया, माइनस एक्स अपॉन रूट लिया, माइनस माइनस प्लस m इंटू m और ठीक है m इंटू m cos इनवर्स ऑफ दिस एज इट इज d by dx ऑफ दिस लिखा है कितना m कांस्टेंट cos इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 अपॉन रूट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय अंडर रूट. तो देखो ये रूट और ये रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा इंटू y2 माइनस एक्स y1 ये अपॉन रूट कैंसिल इक्वल टू माइनस m इंटू m स्क्वायर ये एज इट इज. तो डिवाइड कैंसिल होगा इससे. ब्लॉक टर्म कितना है y. फाइन ये y इधर का प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0. समझ में? अरे समझ में बोलो किसको प्रॉब्लम है. चलो फोटो खींचो, फोटो खींचो नहीं लिखो, लिखो मैं यहाँ पे लेट तो लेट 10 मिनट नो प्रॉब्लम. लिखो फॉलो मी. मैं यहाँ पे सब कोड कर रहा हूँ, तुम लोग लिखना है. लिखो बाद में एक्चुअल नोटबुक में लिखना है, बाद में एक्चुअल नोटबुक में लिखना है, ये टाइम पास नहीं है. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बड़ा समय 4 मार्क्स के लिए. dy by dx इक्वल टू sin to cos लिखना है. नहीं लिखा तो जाएंगे तुम लोग नरक में, मुझे मालूम नहीं. किधर गया तो लिखते जाओ. ये नोट भी लिखना है.
नोट लिखा? You are writing this on rough page. Later you have to write on particular notebook, proper notebook, regular notebook. Okay. Sir Aditya Mane. Next sum. Special sum. Next sum. क्या दिया है? Y is log of log 2 x given. Show that xy2 plus xy1 बढ़िया सम्स किस टाइप के है? आदित्य माने आएगा प्रेजेंट आज? चलो छोड़ो, कोई बता रहा है? जिसको आ रहा है वो बताओ, 2 स्टेप बताओ बस, आगे आई विल टेल यू व्हाट टू डू. सांग रे. Sir, differentiate with respect to x. मग थांब एक मिनिट. हा, मग मूर्खा तुला मी किती वेळा बोलतोय सांग म्हणून तुला पाव नाही का रे? हा सांग, नाही, sir. संपू दे क्लास, तुझ्या घरी फोन करतो मी. सांग. dy by dx equal to Differentiating with respect to x. हा. dy dy by by dx equal to 1 upon log 2x 1 upon log 2x d by dx of log 2x. d by dx of log 2x. बराबर है? यस. Log of f of x. Log of f of x. 1 upon f of x d by dx of f of x. So dy by dx is 1 upon log 2x. 1 upon 2x 1 upon 2x into d by dx of 2x. d by dx of 2x. By 10. बरोबर. पुढे. Therefore dy by dx is 1 upon log 2x 1 upon 2x2. पुढे बोल. 2 cancel. Cancel. पुढे. Denominator ची term LHS ला न्यायची. काय घ्यायचं? Therefore x log 2x equal to dy by x dx. log 2x into dy by dx equal to 1. पूरा डिनोमिनेटर देखो, 2 2 कैंसिल, x log इधर लेके गया. यस, बरोबर. बोल पड़े. बरोबर है. गो अहेड. Again differentiate with respect to x. Differentiating with respect to x. बोल. X as it is dy by dx of dy by dx of log x dy by dx. मित्रा मैत्रिणींनो सगळ्यांनाच तुम्हाला रूल माहित नाही का? UVW रूल माहिती आहे का तुला? नाही सर. 11 ला शिकला? हा? नाही. येस और नो? नो सर. सांग काय रूल आहे त्याचा? UVW रूल. नाही सर. हा? नाही माहिती सर. हाँ, पर ठीक है. इधर देखो, तुमको मालूम होना चाहिए UVW रूल. सीखा ऑलरेडी. देखो, d by dx of UVW. पहला, दूसरा, तीसरे का डेरिवेटिव
पहिला तीसरा डिजिट दूसरे का डेरिव्हेटिव्ह और दुसरा तीसरा डिजिट पहिले का डेरिव्हेटिव्ह. आता कळलं ए मित्रा? हो सर. हाँ वो फार्मूला जाने दो, लोअर योर हैंड. वो फार्मूला जाने दो. रूल क्या बता रहा है? दो फिक्स रखो तीसरे का डेरिवेटिव, दो फिक्स रखो दूसरे का डेरिवेटिव, दो फिक्स रखो और एक का डेरिवेटिव. देखो पहला दूसरा डिजिट तीसरे का डेरिवेटिव, पहला तीसरा डिजिट दूसरे का डेरिवेटिव और पहला दूसरा तीसरा डिजिट पहले का डेरिवेटिव. कौन सा भी डेरिवेटिव रिपीट होना नहीं चाहिए. यहाँ पे u का डेरिवेटिव, यहाँ पे v का डेरिवेटिव और यहाँ पे w का डेरिवेटिव. एक का डेरिवेटिव लिया दो बाजू आजू बाजू में एज इट इज और एक का डेरिवेटिव लिया दो आजू बाजू में एज इट इज. लाइक तो देखो x log to x as it is d by dx of dy by dx मतलब d2y by dx square plus uw as it is x dy by as it is d by dx of log to x plus log to x into dy by dx as it is d by dx of x equal to 0. क्या किया है uv w. देखो पहला दूसरा फिक्स किया तीसरे का डेरिवेटिव, पहला तीसरा फिक्स किया दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा तीसरा फिक्स किया पहले का डेरिवेटिव. Therefore, x log to x, this I will write as y2. This is y2. This is y1 plus x y1 d by dx of log to x. कितना 1/2x into d by dx of x as plus log to x dy by dx. d by dx of x is 1. बराबर है 2 2 कैंसल, x x कैंसल. बराबर है क्या आएगा देखो. Therefore x log to x y2 plus ये देखो 2x x कैंसल y1 plus log to x dy by dx y1. अभी देखो तुमको रिजल्ट में कहाँ पे लॉग दिखा दे रहा है क्या? रिजल्ट में लॉग दिखा दे रहा है नहीं. सो रिमूव लॉग. हाउ टू रिमूव लॉग? ये लॉग रिमूव करना है. बरोबर है. तो यहाँ से आएगा देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा मित्रांनो. इक्वेशन नंबर 1 से log to x इवन dy by dx भी है तुम्हारा विश. देखो dy by dx कितना आएगा, log to x कितना आएगा 1/x dy by dx. Therefore x log, इधर भी log to x है इधर भी log to x है, अपने को log to x हटाने का है. So x into what is log to x 1/x dy by dx into y2 plus y1 1/x dy by dx. बराबर है. log to x अपने को नहीं चाहिए. What is log to x 1/x dy by dx. फाइन. मल्टीप्लाई बाय अपॉन नहीं चाहिए. मल्टीप्लाई बाय dy by dx. क्या किया? मल्टीप्लाई बाय x dy by dx. तो देखो ये और ये कैंसिल होगा. मल्टीप्लाई करेंगे x dy by dx y1 प्लस ये और ये कैंसिल प्लस y1 इक्वल टू 0 होगा. क्या होगा? x y2 ये y1 है इस y1 so x y1 into y1 plus y1 equal to फाइन. so x y2 प्लस दोनों में y1 कॉमन, दोनों में क्या कॉमन y1. कितना मिलेगा x y1 प्लस 1. दिस इज योर रिक्वायरमेंट. बढ़िया है, बढ़िया ही है. सी यहाँ तक आया उसने बताया यू वी डब्ल्यू रूल है और तुम लोग ऐसे भी कर सकते. यूर विश यहाँ से न्यूमेरिकल को नंबर ऑफ एज आएंगे. यू शुड आस्क मी डाउट सर 1/x क्या पे लगा तो 1/x आएगा. डिफरेंशिएट करना है करो रिव्यू रूल वो भी चलेगा. यूर विश इस सम को अलग अलग मेथड यहाँ से यहाँ पे कॉमन है
तुम लोग होमवर्क के लिए होमवर्क सिर्फ 2 लोगों ने या 3 लोगों ने मुझे कल का होमवर्क दिया है। 4 लोगों ने सिर्फ मुझे होमवर्क दिया है। फाइन, 4 लोगों ने, नाम बताता हूँ, आदित्य माने, वैदई, पार और रितु चौधरी, 4 लोगों ने मुझे तो चेक करने को बोला, बस, बाकी किसने नहीं बताया। और भी एक्स का है, सो log 2x divided by 1 by डिफरेंशिएट का है, यूवी रूल आंसर है। फाइन, पर यहाँ पे यूवी रूल पता है, अटक गया अभी थोड़ा कुछ यहाँ पे है। तो देखो हो गया, यूवीडब्ल्यू रूल बताया 3 बार, पहले 2 एज तीसरे का डेरिवेटिव प्लस पहला तीसरा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस पहला दूसरा तीसरा पहले का डेरिवेटिव होगा। इसका डेरिवेटिव लिखा है ऑलरेडी, इसका लिखा है यहाँ पे, उसने मैंने बताया 1/2x डिवाइड x of 2x, इसका डेरिवेटिव 1, बस बराबर लिखो। log 2x, ये 2 कैंसिल, x से कैंसिल, y1 ये नहीं चाहिए, तो ऐसे उठता है 1/x डिवाइड बाय x, अगर लिखा फ्रॉम 1, इसका जगह ये डाला, एक जगह तो यस, मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय x, मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय x, तो x y2 मिलेगा, ये और ये कैंसिल, प्लस y1 इनटू दिस, ये और ये कैंसिल, y1 आंसर आया, ये y1 है, y1 कॉमन ले लिया, x y1 प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइन, अभी मैं ये पहले लर्न करना है, नोटबुक पे लिखना है, उस पे बेस आई विल पुट अप होमवर्क, यू हैव टू सॉल्व। ओके, डाउट होगा पूछो, मैंने आंसर नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया, और एक बार पूछो, कौन आस्किंग मी डाउट, नो प्रॉब्लम। चलो अभी को मिलते हैं, बाय बाय।